Very good afternoon, students. I am Professor Komal Bardia. Will teach you today the subject financial management. This subject belongs to the MBA and also to the BBA. We are going to learn the financial management today. Now, what is the meaning of financial management? Meaning of financial management. First of all, I will tell you what is a finance. Finance is the most impartial part of every business. It is the blood of any business enterprises or any for any person for surviving his day-to-day life. Business finance can be called as a blood for the businessman. Now, what is the financial management? Financial management is nothing but the management of finance. How you will manage the finance that is very important. This is that which can be called as money. Okay. Now, what the author says. In simple terms, financial management is a business function that deals with investing the available financial resources on the way that greater business success and return on investment is achieved. Financial management means, now we will come to the definition. Financial management means, planning, organizing, directing, and controlling. This is nothing but the principle of management. Now we will learn it from the point of financial management. We have to plan, organize, direct and control. What we have to control? We have to control the financial activities. We have to plan for finance. हमें प्लान करना है सबसे पहले कि फाइनेंस हमको कहाँ से जनरेट करना है, किसके लिए जनरेट करना है. जनरेट करने के बाद उसे प्रॉपर हमें ऑर्गेनाइज करना है कि ऐसा ना हो हम लोग फाइनेंस, हमारे पास पैसा तो बहुत है, बहुत सारा मनी है, बहुत रिसोर्सेज है, बट यदि हम उसे प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाते तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ resources or waste of finance. So we have to organize the finance. Next one is directing. Directing means giving the direction. Direction means आपको किस फील्ड में कितना पैसा यूज करना है. हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो की तरफ. फाइनेंस में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट which gives you the lots of options where you can invest or you can make your portfolio. तो हमें डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि किस में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है. नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग. सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली कर ली लेकिन उस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है. काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ तक हो सकता है हमसे, we have to control all the financial activities. This is called as the financial activities, जिसमें controlling, directing, organizing and planning. Planning जो है हर कोई भी प्रोग्राम का बोलिए आप या कोई भी एक्टिविटीज़ का, कोई भी मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है आपका प्लानिंग. तो वी हैव टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. Now what the financial activities include? Financial activities such as what the financial activities include? It includes two types: procurement and utilization.
procurement of resources and utilization of resources. Okay, it is very simple to learn the definition of financial management because हमने यहाँ चार्टिंग फॉर्म से इसे ऑर्गेनाइज किया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग financial activities such as, now number 1 is procurement of resources. Procurement means हमें कहाँ से resources procure करना है, कहाँ से generate करना है, किससे हम लोग कितना फंड रेज कर सकते हैं. Resources which may be here in the financial management, resources means आपका finance that is money. ठीक है, procurement of resources आप कहाँ से पैसा generate कर सकते हैं. And utilization of resources. Utilization of resources means how you can utilize the resources. आप उसका यूज कैसे कर रहे हो, कैसा उसका मैक्सिमम यूज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 1000 crores and you are not utilizing it properly, then it will be the wastage of resources. 1000 crores should be used in such a manner that it should multiple. Its results should be multiple. So, financial activities such as procurement of resources, utilization of resources. Okay. Utilization of funds of enterprises. It means applying the general management principles to the financial resources of the enterprises. Means ये जो है planning, organizing, directing and controlling, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के. लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कहाँ अप्लाई करनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सो दैट हमें कितना रिसोर्सेज कहाँ से हम लोग फंड रेज कर सकते हैं और कितना कहाँ पे हमें यूटिलाइज करना है. वी कैन नो अबाउट इट. ओके, नाउ प्लीज रीराइट इट. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: planning, organizing, directing, controlling the financial activities such as procurement of resources and utilization of resources for the enterprises. Now we will learn for the scope. Scope of financial management. Here, whenever I will write FM, that is a financial management. Scope comes to the two types. There are two approaches towards the scope of financial management. That is traditional approach and modern approach. Traditional approach and modern approach. This is the first thing today we have learned, and this is the second thing today we will learn now. Now, scope of financial management. Okay, it have the means हम लोग कहाँ financial management को देख सकते हैं. So the scope of financial management divided into the two approaches. That is traditional approach, and second one is modern approach. Traditional approach and modern approach. What the traditional approach tell us? The traditional approach was known as the corporate finance. This approach was initiated to procure and manage. इसमें क्या आता है mainly? Procure and manage the funds. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके मेनली कौन से दो पार्ट आते हैं? प्रोक्योर करना, यानी आपको कितना पैसा लगने वाला है, आप कहाँ से फंड आप रेज कर सकते हो, दैट कम्स इनटू द प्रोक्योरमेंट एंड मैनेज द फंड्स. कितना फंड आप रेज कर सकते हो ये आपको पता है, लेकिन इसे मैनेज कैसे करना है, किससे? फॉर एग्जांपल, आपको शेयर कैपिटल रेज करना है, आपको डिबेंचर इशू करनी है, आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या इक्विटी शेयर इशू करना है या फिर लोन्स लेना है. दैट इज ऑल अबाउट द प्रोक्योर एंड मैनेज द फंड्स.
ओके, ये है जब काफ़ी साल पहले, बिफोर सो मैनी ईयर्स, ये चलता था कि सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच ही था टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लोगों को सिर्फ इतना ही लगता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इजी है कि हमें कितना पैसा लगने वाला है और उससे मैनेज कैसे करना है, किससे हमें बोरो करना है, कितने परसेंट पे बोरो करना है, दैट इज फिनिश। ठीक है, बट नाउ मॉडर्न अप्रोच सेज, ये हमारा हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ हमारा क्या है, ओकेजनली इन दिस अप्रोच फाइनेंस वर रिक्वायर्ड नॉट फॉर द रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए पैसा जनरेट नहीं किया जाता है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पैसा जनरेट नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन, लिक्विडेशन एंड एक्सपांशन, इतनी ही चीज़ों के लिए फाइनेंस का इम्पोर्टेंस था, या फिर हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। ठीक है, नाउ वी विल कम टू दी मॉडर्न अप्रोच। व्हाट द मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच मीन्स हमारा करंट सिनेरियो क्या बोलता है भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है फाइनेंस में। मैक्सिमम पीपल दोज हू वांट टू एक्सेप्ट वांट एंड देयर एक्सपेक्टेशन आर टू अचीव द बिग पोस्ट, they used to pursue further specialization of finance. Okay, what the modern approach tells us about the financial management? With the technological improvement, increased competition and development of a strong corporate, it was important for the management to use the available financial resources in the best possible manner. हमारा modern approach क्या बोल रहा है? Modern approach tells us कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया, स्मार्ट सिटी हो गई है, स्मार्ट फोन्स हो गए, सब लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, तो हमें और कंपटीशन कट थ्रोट हो गया है, देयर इज़ टू मच कंपटीशन इन द मार्केट। तो आपको क्या करना है, हमारे पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम utilization of resources. This is nothing but the very important and highlighted point of modern approach, that is maximum utilization of resources. अब आपके पास पैसा बहुत है, बहुत सारे लेबर है, लेकिन आप उसका प्रॉपर जिस पर्सन में जो कैलिबर है आप वो यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज। यदि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन वो सिर्फ रखा हुआ है, इट इज ओनली केप्ट इन द अकाउंट एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सम सिक्योरिटीज और सम एट समवेयर एल्स, देन योर मनी विल नॉट बी गेट मल्टीपल, इट विल बी प्योरली वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज। दैट फाइनेंस इज नथिंग बट द ब्लॉक फाइनेंस वी कॉल्ड इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज। इट इज़ नथिंग बट द ब्लॉक, जो पैसा हमारा ब्लॉक पड़ा है और जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है मीन्स उसकी परचेसिंग पावर आप कम कर रहे हो, जो मल्टीपल हो सकता है आप उसे सिर्फ रख कर उसका पावर कम कर रहे हो। द मॉडर्न अप्रोच हैड मोर कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल व्यू पॉइंट विद अ फोकस ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एक्टिव एंड ऑप्टिमम यूज। मेन एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोच इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में आपका आ जाता है आप किस तरह से कैपिटल बजटिंग करते हो। आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप उसे किस तरह बजटिंग करते हो, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल कम्स इनटू द पार्ट ऑफ योर मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल बजटिंग आएगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग डे टू डे वर्किंग के लिए आपको कितना फाइनेंस लगने वाला है वो आपको कैसे मैनेज करना है। ऐसा ना हो हमें रोज़ खर्चा करने के लिए सिर्फ फॉर एग्जांपल लाख रुपए रख रहे हो, लग रहे हैं हमें डे टू डे, हम लोग बोलते हैं ना हैंडी कैश रखने के लिए, हैंडी कैश आपको रखना है सिर्फ 1 लाख रुपीज़, और आप रख रहे हो 2 लाख रुपीज़, तो 1 लाख विल बी द वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, you are just withdrawing it from the bank and keeping it with you, so that will be the waste. You have to invest that 1 lakh at somewhere. Okay, determining the
very important part of modern approach. Cost of capital means whenever you withdraw the money from any lender, then how much cost you need to pay to that lender, you have to decide it. And the cost should be, your cost should be minimum. The minimum cost contains, minimum cost means यदि आप फॉर एग्जाम्पल शेयर इशू कर रहे हो तो आपको उस पर डिविडेंड पे करना है, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, आप लोन ले रहे हो तो आपको उस पर भी लोन पे भी इंटरेस्ट करना है। कहते हैं ना हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हुए लोन लेते टाइम कौन सी बैंक कम लोन देने वाली है, तो वैसा ही होता है। जो मिनिमम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता चलेगा कि बाबा ये इशू करने के बाद हमें कम से कम कॉस्ट में इतना पैसा मिल सकता है, तो वी विल कंपेयर इट एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। एंड दिस ऑल थिंग्स कम इनटू द अंडर द बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी सब्जेक्ट में हम लोग को पता चलेगा आगे कि आप किस तरह से आपका कैपिटल मैनेज कर सकते हो, आप आपका कॉस्टिंग कम कर सकते हो, इससे आपकी कॉस्ट कटेल होगी, और किस तरीके से आप कम से कम कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका सारा मनी और कैपिटल मैनेज कर सकते हो। इट इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। किस तरह से पैसा मैनेज करते हो, उसे यूज़ करते हो, जो मैनेज किया है उस पे से आप कॉस्ट कितनी कम कर सकते हो। कम से कम कॉस्ट पे हमें पैसा चाहिए, और जब पैसा आ गया है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हमें करते आना चाहिए। पैसा तो किसी के पास बहुत सारा भी होता है लेकिन वो यदि यूज़ नहीं कर पाता है तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ डमी मनी हम लोग जिसको बोलेंगे, जिसे हम लोग मार्केट में यूटिलाइज नहीं कर पाते। Got it all of you? Now we will revise it. We have seen only 2 topics today, that is meaning of financial management and scope of financial management. Again I will revise this topic. What is a financial management? Financial management means planning, organizing, directing, controlling. क्या कंट्रोल करना है हमें? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी है? इट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज and utilization of resources. Okay. Now we will come to the scope of financial management. कहाँ financial management use होता है? इसमें आपको 2 अप्रोच है, that is traditional approach and another is a modern approach. Now traditional approach comes to, traditional approach में आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि पुराने ज़माने में लोग सिर्फ क्या सोचते थे, हमें सिर्फ क्या करना है, पैसा प्रोक्यूर करना है और उसे मैनेज करना, दैट इज इट। बस भाई पैसा चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड अनदर अप्रोच इज अ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच काफ़ी वाइड कंसेप्ट है, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ और काफ़ी कुछ सारा ऐड किया गया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न अप्रोच हमारा बोलता है भैया तुम्हारे पास फाइनेंस तो है but it includes the maximum utilization of resources. Okay, it also comes, following topic also comes under the financial management, that is your cost of capital, your capital budgeting, your working capital management, how you can manage your working capital for the enterprises. All this comes under the modern approach, and definitely we will look at again all the topics in the deep way, that is what is cost of capital, what is working capital management, what is capital budgeting. We will learn it in the future lectures very soon.